Anyone who knows Java language, can anyone explain what is Java? Anyone? Okay, so basically it's a programming language. Okay, to develop your software application, we required some languages. That languages called C language, C++, and Java, C Sharp, Python. ऐसे काफी सारी languages available है. Okay, that languages is called the programming languages. And ये programming languages खुद के rules provide करती है. That rules you already know, maybe किसी ने सुना होगा जो IT students से, like OOPS, object oriented programming. So this will be lecture हम लोग बाद में देखेंगे, but firstly we'll learn about only the what is Java. It's a programming language to develop the software and the hardware based applications. Getting the point? क्या होता है Java? It's a programming language. Your interview question, who are from the non-IT background, you will have one interview question which is what is Java? Okay, starting with the first question, what is Java? So Java is the programming language to develop the software and the hardware based application. Software based application means what? That applications can store on your systems, laptop, mobiles, या फिर your desktops. इस पे आप store करते हो, इनको use करते हो. Okay, that is your software based application. Some hardware based application means your washing machine, AC, TV remote. Okay, ये हुआ आपका हार्डवेयर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन. ओके, जैसे काफी अभी इलेक्ट्रिक कार आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक. इनसाइड दैट जो भी आपके एप्लीकेशंस आते हैं, लाइक ओके, तो कैसे आपके बैटरीज को रिस्टोर करना है विद द इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कैसे आपका फ्यूल इंजन में जा रहा है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए यू रिक्वायर्ड सम सॉफ्टवेयर बिहाइंड द योर इंजन. तो ये सब आपका जावा प्रोग्रामिंग में होता है. आई एम गिविंग यू अ रियल टाइम एग्जांपल ऑफ द जावा लैंग्वेज. अनदर वन एग्जांपल्स आर, जैसे आप फोन पे, गूगल पे करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स यूज करते हो, तो इनसाइड दैट ट्रांजैक्शंस व्हाट हैपन, एटीएम सिस्टम्स, ये यहाँ पे भी ये दिस हार्डवेयर बेस्ड. तो यहाँ पे भी आपका बैकग्राउंड में यूज होता है जावा लैंग्वेज बिकॉज इट्स प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी. So that's why it's a strong programming language who develop the software and the hardware based application. Next one is the history of Java. Where when the Java was developed, किसने develop किया था, who is the founder of Java, that everything. You just give me a second. Okay. So where we are, that history of the Java. So Java is developed in 1995 by the Sun Microsystem is a laboratory. Okay, Sun Microsystem is a laboratory name based in US. इस laboratory में Java language developed हुई है by the James Gosling. So the father name of Java language is a James Gosling. He is the founder of Java and he is the engineer in a Sun Microsystem research lab. It's a laboratory, it's a research lab जहाँ पे products या फिर software application develop करने के लिए जो programming लगती है, उनको उनकी development चलती है वहाँ पे. To develop your applications, तो वहाँ पे एक language develop हुई थी, that language called Java language in 1995 by the James Gosling. Okay, these two lines is called the history of Java. Hope you understand the point. Sun Microsystem is a laboratory. Java language was developed in 1995 and James Gosling is the founder name. Okay, and who is working as a software developer in a Sun Microsystem, and he developed that language. Another one is more than that. अभी ठीक है, ये तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ, बट व्हाई, व्हाट इज द जावा? इट्स व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जावा? सो जावा इज अ हॉट कॉफी बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडोनेशिया. इंडोनेशिया इज द आइलैंड जहाँ पे एक कॉफी बीन बनती है. दैट कॉफी नेम इज अ जावा कॉफी. And in 1995, Java was the most popular language in 19th century. सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हो रही थी वो जावा लैंग्वेज में होने लगी. एंड इट इज मोर सिक्योर फॉर द बैंकिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज करने लगे. देन आपका टीवी सेटअप बॉक्स जो है, वी कैन सी द टीवी सेटअप बॉक्सेस, एयरटेल टीवी सेटअप बॉक्सेस है हमारे यहाँ, फ्री डिश है, टाटा स्काई है.
तो ये सब तो इंडिया में देख रहे हैं, तो मोर देन दैट अदर कंट्रीज में भी ये 1995 से चलता आ रहा है। एंड दैट टीवी सेटअप्स डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज बनी थी, दैट लैंग्वेज इज नेम एज जावा लैंग्वेज। दैट्स व्हाई इट्स नेम जावा रखा गया, बिकॉज इट्स अ हॉट कॉफी बीन। बिफोर योर जावा लैंग्वेज इट्स नेम वाज ग्रीन टी, इसको भी चेंज करके उसका नेम रखा गया ओक। ओके, बट ओक इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी होने की वजह से इसका नाम चेंज करना पड़ा टू द जावा। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। The green team was the first name. After that, its name changed to the Oak, and Oak is a already registered company. That's why its name changed to Java language, and it's just a hot coffee name, hot coffee bean, which is produced by the Indonesia. नाउ ये तो हो गया अबाउट द हिस्ट्री, इट इज डेवलप्ड इन 1995। सब कुछ जावा के जो रूल्स है वो सब कुछ आपको सन माइक्रो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था। बट नाउ जो भी वर्जन्स जावा के रिलीज होते हैं, अगर आपको कंप्लेंट करनी है अबाउट द जावा, आपका जावा डॉक्यूमेंटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो हु इज द सब्सिडरी ऑफ द जावा लैंग्वेज इज द ओरेकल। Oracle is the corporation. Oracle Corporation is the company who subsidiary of Java. मतलब अभी Oracle Corporation is the owner of Java product. Now Java, it's not a just language. Java is the product. Inside that you can develop the lot of systems. In using Java, you can develop operating system, जो कि है Android system, which is already developed. और है आपके पास Java का product, like I can say Android programming language, which is purely written in Java. Some hardwares, there are a lot of hardwares, your AC, microwave, TV setup boxes, Alexa, ओके, तो ऐसे रिमोट एप्लीकेशंस है, ATM सिस्टम्स है, ये सब कुछ आपका जावा में बनता है। ओके, तो इट्स जो भी जावा के रिलीजिंग वर्जन अभी आ रहे हैं, जो भी जावा का वर्जन आप डाउनलोड करोगे, इट इज बिकॉज ऑफ द ओरेकल कॉर्पोरेशन, बिकॉज इसका जो भी इनकम आएगा जावा प्रोडक्ट्स का, तो वो आपका ओरेकल के पास जाने वाला है, एंड यू विल कम्युनिकेट विद द ओरेकल। सन माइक्रो सिस्टम इज नॉट नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जावा प्रोडक्ट। ओके, उसने सिर्फ लैंग्वेज डेवलप की थी, बट ओरेकल कॉर्पोरेशन ने अभी जावा के काफी सारे प्रोडक्ट्स डिजाइन करके रखे हैं, जैसे ओरेकल इटसेल्फ डेटाबेस जो है वो जावा लैंग्वेज में बना है। जैसे सैप सुना होगा आपने, एसएपी सुना होगा, वैसे एसएपी की जैसे अल्टरनेट मार्केट में अवेलेबल है ओरेकल ईआरपी सॉल्यूशन। दैट ओरेकल ईआरपी सॉल्यूशन एंड एज वेल योर सैप both are written in a Java language. तो ये जो ERP solutions है, inventory management solutions you can say, तो ये सब कुछ आपका जावा में ही बनता है। Hope you understand the point why the Java is more popular in the market. If you learn the Java language, okay, तो आपको सबसे पहले मतलब you are the this is your first lecture, so maybe आपके पास Java downloaded नहीं है, so you have to download JDK लेटेस्ट वर्जन फॉर योर सिस्टम। आपका जो भी सिस्टम है, विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, 7 है, तो उसके लिए आपको जेडीके डाउनलोड करना है। जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, जेडीके लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज 8, जेडीके लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज 10 और whatever जो भी सिस्टम है आपके। ओके, एंड द सेकंड वन एप्लीकेशन दैट यू हैव टू डाउनलोड व्हिच इज इक्लिप्स ऑक्सीजन। okay, same for the your system, जो भी आपकी your system है, तो these two applications you have to download it compulsory to each student. Hope you understand the point, yes or no? Be interactive students with me so that I can understand कि आपको समझ में आ रहा है। IntelliJ will work, yes Amish, IntelliJ will work, but हम हमारे यहाँ पे इक्लिप्स ऑक्सीजन लेते हैं। इक्लिप्स इज द आईडी इंटेलिजे के जैसे ही है, बट हम लोग इक्लिप्स यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट इज यूजफुल इन एवरी कंपनी। जो रियल टाइम सिचुएशंस में कंपनी यूज करती है, अगर आप इंटेलिजे पे हैंड्स ऑन हो या फिर आपके पास ऑलरेडी है, तो यू कैन यूज दैट एप्लीकेशन ऑल्सो, बट जिनके पास नहीं है तो यू मस्ट हैव टू डाउनलोड इक्लिप्स ऑक्सीजन ओनली। ओके, इसकी दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, गो ऑन दैट ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से डाउनलोड करो। If anyone have doubts, put your message in a chat box so I can answer your questions. Next one is Java is a platform. और एक है Java is a platform. Platform means what? It's a hardware and the software based configuration. Inside that your application can use.
आपका जो जावा एप्लीकेशन है, ओके, जो भी आपका जावा का प्रोडक्ट बनेगा, दैट एप्लीकेशन कैन रनिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको यूज करते हो, मतलब उसको यूज करने के लिए आपका प्लेटफॉर्म जो होगा वो प्लेटफॉर्म इट शुड बी योर जावा प्लेटफॉर्म, मतलब आपको यूज करने के लिए, मतलब डेवलप करने के लिए भी जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड जावा के प्रोडक्ट्स आपके एज अ मतलब एग्जीक्यूट होकर, डेवलप होकर, आपका टेस्ट होकर, जब आप यूजर को हैंड ओवर कर देते हो आपका जो भी एप्लीकेशन है, उसके पास भी जावा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो उसके पास जेआरई रिक्वायरमेंट है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, एंड हमारे पास रिक्वायर्ड है जावा जावा डेवलपमेंट किट विच इज जेडीके, एंड जिसको यूज करना है उसके पास चाहिए जेआरई। फॉर योर जूम एप्लीकेशन, मैंने मीटिंग होस्ट की है, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, तो also I have used Zoom application, and your side you also install Zoom application so that we can communicate. So Zoom is that kind of application which is used both sides, then you can communicate. So that kind of applications, that is called the platforms. Hope you understand the point. Next one is no one have the language issue. If anyone have the language issue, काफी ज्यादा इंग्लिश हो रहा है, so just let me know, मैं बीच में थोड़ा हिंदी भी ऐड कर दूंगी, या फिर ये जैसे अभी चल रहा है दैट इज ओके, जस्ट इन्फॉर्म मी ओनली, ओके, इन पुट योर मैसेज इन अ चैट बॉक्स. नेक्स्ट वन इज लेट्स सी द हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर इन जावा, मतलब हाउ मेनी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस यू कैन डेवलप, किस टाइप के एप्लीकेशंस किस में बनने चाहिए, अगर मुझे डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने हैं तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट वन इज जावा एसई. Java SE meaning Java Standard Edition. Inside that, you can develop the core Java based application, desktop based application. मतलब core Java को यूज करके आप सिर्फ डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो. मींस दैट एप्लीकेशन यू हैव टू इंस्टॉल ऑन एवरी सिस्टम. जैसे एंटीवायरसेस है आपके, दैट एंटीवायरस यू हैव टू इंस्टॉल ऑन एवरी लैपटॉप, एवरी डेस्कटॉप, दैट इज योर कोर जावा या फिर एसई एप्लीकेशन. इसके लिए आपको जावा एसई वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा. सेकेंड वन इज जावा डबल ई. Java EE full form is Java Enterprise Edition. Inside that we can develop web applications. Okay, web applications simply means आपको यूज करने के लिए सर्वर्स चाहिए, आपको इसको यूज करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. ओके, टॉमकैट, एपेचे, ये भी सर्वर्स है, ग्लासफिश सर्वर्स है, इंटरनेट कम्युनिकेशन जो रिक्वायर्ड, बिहाइंड दैट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ आपको अगर आना चाहिए, then you can develop the advanced Java application, or you can say web application like a website, या फिर some web application like a Zoom is also your web application, because without internet हम लोग communicate ही नहीं कर सकते. That is your Java EE application. Next one is Java ME. Java ME stands for Java Mobile Edition. Inside that you can develop the micro application या फिर mobile development you can develop. मतलब जो भी कोई वेबसाइट है ऑलरेडी उसके एप्लीकेशंस है, जैसे फ्लिपकार्ट वेबसाइट देख लो, व्हेन यू ओपन इनटू द गूगल तो ये आपका उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर देगा. एंड सेम इफ यू हैव टू यूज विद द मोबाइल, तो इसका एक एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट करके, अमेजोन का खुद का एप्लीकेशन है, तो दैट इज योर माइक्रो बेस्ड एडिशन. Hope you understand ME कब use करना है. And the next one which is launched in 2012 which is Java FX, and इसको कुछ full form नहीं है, but you have to develop, if you want to develop some internet application तो आपको FX use करना पड़ेगा. It is used to develop rich internet application. Rich internet मतलब काफी easy, you can download from the Google and you can use it is very easily. ये embedded code आपको देगा, आपको खुद से कुछ ज्यादा कोड राइट करना नहीं है. You just have to focus on your business logic. Hope you understand the point. What is the platforms in Java? Java SE, Java EE, Java ME and Java FX. Understood? Yes. Yes. Okay. Now, let's see how many types of applications we can develop in Java. So as per the Sun Microsystem, there are more than 8 billion softwares are running on Java. Okay. The survey says that about your Java language by the Sun Microsystem, more than 8 billion software running on Java. Okay, like your first is a desktop based application. First, desktop based application means your antiviruses and the billing softwares.
I just explain you in a Java SE point that kind of applications you have to install on every system, like your antiviruses. वही example मैंने वहाँ पे बताया था. Another one is a billing software. अगर किसी कंपनी के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर, किसी शॉप के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हो, किसी होटल के लिए बना रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर आपको एज पर दैट होटल, एज पर दैट शॉप बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स अलग होंगे, उनके मेन्यूज अलग होंगे, उनके जो भी डिटेल्स होते हैं, ओके, ऑर्डर डिटेल्स वगैरह जो भी है, तो एज पर द कंपनी, एज पर द शॉप, एज पर द जो भी होगा, ओके, रिसोर्स, उसके हिसाब से वो अलग होगा. सो दैट बिलिंग सॉफ्टवेयर यू हैव टू डेवलप एज पर द यूजर्स. So this is your desktop based application. Second one is the web application, like for example EPFO, that I have experienced. That website is called EPFO, जो कि हमने CDAC में develop किया था. I'm working in a CDAC as well, and also I have the experience of the 7 years in a industry. Another one is the IRCTC. IRCTC is also website of the government. Delhi Metro, all the banking websites, जितने भी आप banking websites देखते हो, all that banking websites behind background scene में Java language को ही use करती है, because in the market there is only the Java language which provides the 100% security guarantee without viruses. Java में virus नहीं बनते. Java provides you 100% security. Okay. Next one is remote application. Remote application is like your Zoom application. These are remote application. AnyDesk, ShareIt, TeamViewer. These all are the examples of your remote application. I said, yeah, if anyone who use AnyDesk, ShareIt, TeamViewer, अगर आपने किसी ने use किया होगा, तो AnyDesk में भी you just have to put your IP addresses of the next person जिसके साथ आपको join करना है. Okay. सेम फॉर द जूम, आपने मेरा मीटिंग आईडी एंड जो पासवर्ड था वो एंटर करने के बाद आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो गए. ओके, सो दिस इज योर रिमोट बेस्ड एप्लीकेशन. नेक्स्ट वन इज रोबोट एप्लीकेशन, लाइक योर एलेक्सा. दिस इज योर रोबोटिक एप्लीकेशन. रिमोट एप्लीकेशन मतलब बाय यूजिंग अ रिमोट, आप जो नॉर्मली रिमोट से एसीज कंट्रोल करते हो, और भी काफी सारे कार्स वगैरह होते हैं, ठीक है, रिमोट कार वगैरह, तो वहां पे भी IoT यूज करके हम लोग रोबोटिक एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं. दिस इज पार्ट ऑफ रोबोट. Next one is the Wi-Fi applications. There are lot of Wi-Fi applications are there, like your debit card chips are there now, जो कि using Wi-Fi आप transactions कर सकते हो. Games है काफी, there are lot of games are available which are running on mobile applications है जो Java में बनते हैं, like your complete mobile language is also developed in Java, तो mobile applications तो similar. प्लीज म्यूट योर Redmi Note 8, Note 9 कौन है, प्लीज स्टॉप कर दो आपका वॉइस. Okay. Next is animation software, जैसे Max, Maya, Corel Draw, Photoshop. These all the softwares are running on Java only. Your Android OS, Android programming language, Oracle database, Eclipse, NetBeans, Android Studio, ये सब जो IDE है, ये भी सब purely Java में ही written है. Okay, so there are, that's why it is just a category. ये 12 मैंने categories बताए, इनके अंदर काफी सारे applications हैं जो Java में developed है and which is running on Java. इनको डेवलप भी जावा ने ही किया है, इनको यूज करने के लिए भी आपको जावा ही यूज करना होता है. अंडरस्टूड द पॉइंट गाइज? योर मीटिंग विल बी क्लोज इन 1 minute. अगर क्लोज हो गया ऑटोमेटिकली, मीटिंग अगर स्टॉप हो गई, तो प्लीज ज्वाइन इट अगेन. जब मैं आपको बोलूंगी कि योर लेक्चर इज ओवर नाउ, कल हम देखते हैं बाद में, तभी आपको फिर से ज्वाइन नहीं करना है, बिकॉज इट्स अ 40-minute मीटिंग एंड हमने काफी मतलब स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे सभी स्टूडेंट्स आने का. ठीक है, तो अगर बंद हो रहा है तो फिर से ज्वाइन करो. प्लीज रिमाइंड इट. सम ऑफ द स्टूडेंट विल इग्नोर कि ये मीटिंग क्लोज हो गई मतलब लेक्चर खत्म हुआ है, तो ऐसे नहीं है. नाउ योर नेक्स्ट 100% इंटरव्यू क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा? 101%. So the latest version of Java is Java 17, which is released in 2021. Okay, सितंबर 2021 में जावा का 17th वर्जन आया है. अभी मार्च या अप्रैल, मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्ट में आपका जावा 18 वर्जन आने वाला है, क्योंकि ईयरली ये हर एक ईयर में, जैसे 2022 है, यहाँ पे क्वार्टरली 2 वर्जन आएंगे जावा के. ओके, मतलब मार्च अप्रैल के बीच में या फिर सितंबर अक्टूबर के बीच में.
ऐसे 2 वर्जन्स आते हैं पर ईयर बाय द ओरेकल कॉर्पोरेशन, ओके, जावा के। तो हर एक को ऐसे नहीं होता कि जो भी लेटेस्ट वर्जन आया उसको हमें डाउनलोड करके यूज करना है, उसी के अंदर एप्लीकेशंस बनाने हैं, ऐसे नहीं। तो हम लोग यूज करेंगे जावा 1.8 वर्जन। व्हाई वी यूज जावा 1.8? जैसे पकड़ के चलो, अभी मार्केट में आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, डेली डेली रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप के अपडेट्स पर वीकली आते हैं, हर वीक में आपको व्हाट्सएप का अपडेट आ जाता है दैट यू हैव टू डाउनलोड, बट कुछ सेकेंड्स में वो डाउनलोड हो जाता है, कुछ 5 MB 10 MB 25 MB ऐसे कुछ तो भी डाउनलोडिंग उसका आ जाता है, एंड वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। एंड उस अपडेट्स में समथिंग कुछ तो भी फास्टर दिया है, कुछ न्यू अपडेट, कुछ उसका फंक्शनैलिटी वो ऐड कर देते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर अगर सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो एज पर द लेटेस्ट एंड्रॉइड सिस्टम वो कुछ तो भी अपडेट कर देते हैं। तो इस जो व्हाट्सएप डेवलप हुआ था, प्लीज स्टॉप समवन, रेडमी नोट 9। हाँ, तो हम लोग जो भी व्हाट्सएप का वर्जन यूज करते हैं, जब आप एंड्रॉइड मोबाइल सिस्टम लेते हो आपका, तो उस वक्त आपका जो भी इंस्टॉल्ड वर्जन होता है दैट वर्जन इज योर बेसिक वर्जन ऑफ द जो भी व्हाट्सएप है, मतलब जो भी डेवलपमेंट वर्जन होता है दैट डेवलपमेंट वर्जन आपको दिया जाता है एट द बाइंग योर एंड्रॉइड फोन, ठीक है। बट उसके बाद उसके अपडेट्स आते रहते हैं, इट मीन्स नॉट वी आर नॉट यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा, जो भी एप्लीकेशन होता है, ऐसे नहीं होता, वी आर यूजिंग दैट प्रीवियस एप्लीकेशन, बस उसके अपडेट्स आते रहते हैं। तो व्हाट्सएप कंपनी को ये पॉसिबल होगा क्या कि ये वीकली आपको अपडेट्स देते हैं तो यू कैन डेवलप दैट व्हाट्सएप इन एवरी वीक? नो, they will just develop and they will just change in that application so that you can download the latest versions. अंडरस्टूड? सो सेम जावा का है, इसके एप्लीकेशन लॉन्ग लाइफ चलते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू आपको हर एक क्वार्टरली जो 6 मंथ में आएगा तो उसमें डेवलपमेंट करोगे। नो, एज अ डेवलपर वी हैव सम रूल्स एंड उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो जो इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री प्रोवाइड्स द डेवलपर जावा 1.8 इज द लीगल वर्जन फॉर द डेवलपमेंट, एंड यू मस्ट हैव टू लर्न जावा 1.8 फीचर्स। आपको उसमें डेवलपमेंट कैसे करनी है वो आना चाहिए। So that's the certification version name of the Java is Java 1.8. Getting the point? You have the 2 questions. Okay, you have mentioned on your resume that you know the 1.8, but what is the latest version of Java? The latest version of Java is Java 17. अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो just month or the next month, ठीक है, तो ये 2 मंथ में अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो योर आंसर इज Java 17। बट आफ्टर द अप्रैल के बाद, मार्च अप्रैल मई के बाद अगर आप दे रहे हो तो आपका आंसर होगा Java 18 विच इज रिलीज्ड इन जस्ट लेटेस्ट मंथ, या फिर 17 18 ऐसे भी बता सकते हो, नो इश्यूज। बट 17 को भी अभी तक लीगल वर्जन नहीं बताया गया है जिसके अंदर आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो। नो, ओनली द 1.8 इज द लीगल वर्जन टू डेवलपमेंट। गेटिंग द पॉइंट? क्यों यूज करना नहीं है ये भी आपको एज अ डेवलपर पता होना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। यस गाइस, you all understand आपको Yes, क्या ma'am. डाउनलोड करना है? बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तब आपको प्लीज स्टॉप समवन, रेडमी नोट 9। ओके, आपको जेडी के लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, दैट यू कैन डाउनलोड जेडी के 17 ऑल्सो, आप कर सकते हो, बट वी आर यूजिंग फीचर्स ऑफ जावा 1.8, ठीक है। एंड इक्लिप्स ऑक्सीजन ये भी 17 को सपोर्ट करने वाला आप डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज योर सिस्टम्स आर लेटेस्ट सिस्टम्स। आपका विंडोज 10 है, सम ऑफ द विंडोज 11 भी हो सकता है, सम ऑफ विंडोज 8 हो सकता है, बट लेटेस्ट अपडेटेड सिस्टम्स हम लोग उसको भी अपडेट करते हैं, तो आपको लेटेस्ट वाला डाउनलोड करना पड़ेगा टू सपोर्ट योर सिस्टम, बट हम लोग डेवलपमेंट करेंगे 1.8 के अंदर। अंडरस्टूड द पॉइंट? नेक्स्ट, तो जावा क्या है आया समझ में आपको? जावा के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस वी कैन डेवलप इन जावा, इतना तो हमारा हो गया। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जावा, या फिर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा, जावा की क्या स्पेशलिटी है, व्हाई वी शुड हैव टू लर्न द जावा लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड फीचर्स ऑफ जावा। यू विल गेट ऑल द नोट्स, ओके, एट द टाइम ऑफ जब आपका
नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे. दिस इज जस्ट योर इंट्रोडक्शन लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल्सो. Next one is the features of Java. The first feature of the Java is simple programming language. As per the Sun Microsystem, Java is very easy to learn. Its syntax is a simple, clean and easy to understand. Okay, ये कौन बोल रहा है आपको? Sun Microsystem, जिसने Java डेवलप किया है. इसके अकॉर्डिंग योर जावा लैंग्वेज इज टू इजी टू लर्न, मतलब काफी इजी है आईटी एंड नॉन आईटी स्टूडेंट्स के लिए. देयर सिंटैक्स आर सिंपल, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इसकी सिंटैक्स काफी सिंपल है, मतलब रियल लाइफ में मैच हो जाते हैं. क्लीन है, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स इसके दिए नहीं है. एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब कोई भी नॉन आईटी बैकग्राउंड स्टूडेंट इसको सीख सकता है. एज पर माई एक्सपीरियंस आई हैव, जैसे मेरी शायद अभी आपकी बैच मोर देन ऑफकोर्स 100 से ऊपर वाली ही बैच होगी. ओके, मोर देन 100 बैचेस मैंने इसके पहले ले चुकी हूँ मैं. तो सब स्टूडेंट्स हमारे पास मोस्टली नॉन आईटी होते हैं. सम ऑफ फ्रॉम द बीकॉम बैकग्राउंड, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए फाइनेंस, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड ऑल आर प्लेस्ड. ठीक है, तो ये जावा लैंग्वेज ऐसी है विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, कोई भी इसको सीख सकता है. एंड अकॉर्डिंग टू सन माइक्रोसिस्टम, जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बिकॉज व्हाई इट इज? बिकॉज इसको भी प्रूफ है. Its syntax is based on the C++. If you are familiar with the C and C++, अगर आपको थोड़ा बहुत C and C++ का अगर नॉलेज है तो you can relate with the Java automatically. वे काफी बेहतर बन जाता है, काफी सिंपल बन जाता है आपके लिए टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन इज, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज इट्स काफी सिंपल है, समझ में आ जाता है इसका पूरा जो भी वर्जन है. Java has removed many complicated and rarely used features. मतलब जावा में से जो कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है जिसकी वजह से डेवलपर कंफ्यूज हो सकता है आपकी प्रोग्रामिंग को, वो मिस कंफ्यूज, मतलब इसका कुछ पर्पस नहीं है ऐसे लैंग्वेजेस के कंसेप्ट्स का, उनको निकाल दिया गया है, जो कि जावा को बस स्ट्रांग बनना है. ओके, द कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली, काफी कम यूज होने वाले फीचर्स को निकाल दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल है एक्सप्लिसिट पॉइंटर and the operator overloading. That operator overloading is too complicated feature. मतलब यहाँ पे आपके जो ऑपरेटर्स है, लाइक योर प्लस ऑपरेटर, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इन ऑपरेटर्स के मीनिंग चेंज किए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. जैसे प्लस ऑपरेटर है तो एवरीवन नो फ्रॉम द हमारे जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तब से हम लोग सीखते आए हैं, प्लस मीन्स द एडिशन and minus means the subtraction. But in as a developer in Java, in C++, you can change the meaning of that plus. इसकी जगह पे आप माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो. दैट यू आर चेंजिंग द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर्स एंड जावा रिमूव दैट फीचर. बिकॉज जो एक्चुअल रियल मार्केट ने आपको दिया है बस वही यूज करो. डोंट यूज आपका खुद का कुछ मत यूज करो, जो है उसी को यूज करो. ठीक है, that's why it is removed. And another one is the explicit pointer. In explicit pointer क्या होता है? It will created a viruses. Okay, it can corrupt your systems. आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल्स को, आपकी जो सी ड्राइव होता है आपका, जो स्टार्टिंग बूटिंग टाइम होता है, तो इसका जो वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू होता है, उसको चेंज किया जाता है. दैट इज कॉल्ड द वायरसेस. And your explicit pointer will create the viruses. That's why Java language will remove pointers and the operator overloading from the Java. That makes Java more stronger and easy to understand. Next one is, there is no need to remove the unreferenced object because there is automatic garbage collection in Java. जैसे जावा लैंग्वेज सब कुछ ऑब्जेक्ट पे चलती है, लाइक फॉर एग्जांपल आप कुछ सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, जैसे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ले लो. आपने फ्लिपकार्ट को लॉगिन किया है, मैंने फ्लिपकार्ट को लॉगिन किया है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब फ्लिपकार्ट को लॉगिन कर रहे हैं. ऐसे वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं जो कंटिन्यूअसली फ्लिपकार्ट को लॉगिन कर रहे हैं, एंड उनका डेटा अगर फ्लिपकार्ट ने रिमूव नहीं किया तो इट इज पॉसिबल टू मैनेज द सर्वर्स ऑफ द फ्लिपकार्ट. होगा मैनेज? कभी नहीं होगा. सो दैट जो ऑब्जेक्ट्स यूजफुल नहीं है उनको रिमूव कर दो फ्रॉम द मेमोरी, सो दैट आपका एप्लीकेशन भी फास्टर एग्जीक्यूट होगा. एंड आपको खुद से ये करना नहीं है जावा में. जावा में आपको खुद से ऑब्जेक्ट्स को अनरेफरेंस्ड करना नहीं है. दैट मीन्स रिमूव करने की जरूरत नहीं है.
that is called automatic garbage collection in Java. Garbage means unused data, collection means उस unused data को collect करो, okay, and which is provided automatically. So hope you understand the points, meaning भी उसके easily समझ में आते हो अगर आप relate करते हो. Understood the point? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. The next feature of Java is object-oriented programming language. Object-oriented means अभी जो Flipkart का example दिया, आप जो users हो तो उन users को बोला जाता है object, ठीक है? That Java language is based on objects only. सब कुछ वहां पे objects है because it's a software and उस software को use करने वाले जो भी होगा, it may be admin, it may be user, ओके, इट मे बी जो एप्लीकेशन को प्रोवाइड करने वाला हेल्पर कोई भी हो सकता है, तो ये भी हुआ आपका ऑब्जेक्ट. तो ये सब है ऑब्जेक्ट्स, एंड इन ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर डील करना है आपको इन अ रियल टाइम सिचुएशन, यू रिक्वायर्ड सम स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हु सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, क्यों करना है अभी मैं बताती हूँ. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? Object oriented means we organize our software as a combination of different type of objects that incorporate data and the behavior. आपको रियल टाइम सिचुएशन में अगर आपका सॉफ्टवेयर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ बिहेवियर उसका एंड उसका डेटा चेंज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू द फ्लिपकार्ट एग्जांपल अगेन. अगर आप यूजर हो, लाइक मैं हूँ, आई एम अ गर्ल, तो आई विल सर्च फॉर द गर्ली कॉस्मेटिक, या फिर आई विल सर्च माय डेटा. आई विल नॉट सर्च फॉर द शर्ट्स ऑफ द बॉयज, या फिर उनका कुछ मैं डेटा सर्च नहीं करूंगी, उनका कुछ सर्च नहीं करूंगी. लाइक आई एम सर्चिंग फॉर द माई सेल्फ. तो उसका डेटा एज पर माई ऑब्जेक्ट, अगर मैं गर्ल हूँ तो एज पर माई ऑब्जेक्ट आपका बिहेवियर, आपका डेटा ही डिस्प्ले करना चाहिए. एज पर योर आपका डेटा वो डिस्प्ले करेगा. अगर ये हूँ हम लोग, ये यूजर कैटेगरीज. अगर फ्लिपकार्ट को यूज करने वाला यूजर जो है वो एडमिन है, तो उसका डेटा एंड बिहेवियर अलग होगा ऑफ द एप्लीकेशन. दैट इज, ये आपकी रियल टाइम सिचुएशन हुई. एंड एज पर दैट रियल टाइम सिचुएशन, अगर आपका एप्लीकेशन डेवलप है तो करना है, डेवलप करना है, उसको मैनेज करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो यू मस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट इन योर एप्लीकेशन. देन एंड ओनली देन आपका एप्लीकेशन रियल टाइम मार्केट में चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा. होप यू अंडरस्टैंड क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जरूरत है? टू ऑर्गेनाइज और सॉफ्टवेयर. सो इफ योर इंटरव्यू क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, so object oriented means we organize our software as a combination of different type of objects that incorporates both data and the behavior. This is your definition of object oriented. I am searching from the, ये आपको गूगल पे नहीं मिलेगा. I am searching from the reference books and ये हमने collect करके रखा है. That's why that notes are like this. Understood the point? Next one is what is object oriented programming. अभी तो what object oriented क्या होता है वो बताया. अभी मत देखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है. सो इट इज अ मेथोडोलॉजी दैट सिंप्लीफाइज. मेथोडोलॉजी मींस रूल्स. इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ रूल दैट सिंप्लीफाइज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम रूल्स. आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर में आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है एंड उसको मेंटेन करना है विद द डेटा एंड द बिहेवियर, ओके, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स. तो ये सब कुछ हैंडल करने के लिए आपका एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करना चाहिए. देन यू कैन योर एप्लीकेशन कैन बिहेव नॉर्मली इन अ रियल टाइम सिचुएशन. व्हाट इज रियल टाइम सिचुएशन? योर एप्लीकेशन शुड हैंडल द मल्टीपल यूजर्स. आपका एप्लीकेशन ने मल्टीपल यूजर्स को साइमल्टेनियसली हैंडल करते आना चाहिए. आपका एप्लीकेशन इंटरनेट बेस होना चाहिए, जिसको सर्वर की जरूरत है, जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, जिसके पास सिक्योरिटी है, एंड आपका एप्लीकेशन किस कहीं पे भी चलेगा. इट कैन बी वर्क ऑन क्लाउड, इट कैन बी वर्क ऑन डेस्कटॉप, इट कैन बी वर्क ऑन लैपटॉप, मोबाइल्स, कहीं पे भी चलेगा. दैट इज योर रियल टाइम सिचुएशन. अंडरस्टूड द पॉइंट व्हाट इज रियल टाइम सिचुएशन? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स कौन से हैं? लाइक योर ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट तो अभी मैंने जस्ट बताया. योर एडमिन, योर यूजर्स, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. क्लास, ये सब कुछ आपका मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट, ये सब आपको किसी स्ट्रक्चर के अंदर लिखना होता है. हु होल्ड्स योर डेटा, ओके, होल्डिंग ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द क्लास.
अनदर वन इज द इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मीन्स आपके एप्लीकेशन को यूज करके आप किसी एप्लीकेशन को नया एप्लीकेशन भी डिजाइन कर सकते हो. जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो, ओके जैसे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, तो फ्लिपकार्ट के पहले भी कोई तो एप्लीकेशन होगा, जैसे मैनुअल सिस्टम्स होते थे, उनको देखकर उसकी फंक्शनैलिटी को उसको यूज करके उन्होंने रियल टाइम एप्लीकेशन बना दिया. उसकी आइडिया अमेजोन ने ले ली, तो अमेजोन भी उसी की फंक्शनैलिटी थोड़ी इनहेरिट कर रहा है. इनहेरिट मतलब adopted from somewhere, that is called the inheritance. तो आपका जो एप्लीकेशन है, अगर आपने डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाया है, तो वो एप्लीकेशन आप मोबाइल बेस्ड बना सकते हो, आप वेब सर्विसेज बना सकते हो, तो यू विल यूज सेम फंक्शनैलिटी अगेन. नेक्स्ट वन इज द पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जो अभी एग्जांपल मैंने बताया, जो यूजर्स है, एक मैं हूं तो मैं गर्ली कुछ तो भी प्रोडक्ट सर्च करूंगी लाइक अ कॉस्मेटिक, clothes, that everything. अगर बॉय है तो he will search for the another things, right? So this is your polymorphism. So behavior of the object of the application. हर एक ऑब्जेक्ट का टाइप के ऊपर आपका एप्लीकेशन का बिहेवियर जब चेंज होगा, that is called polymorphism. Poly means many and morphism means many forms. आपके एप्लीकेशन के मल्टीपल फॉर्म्स, उसका बिहेवियर मल्टीपल वेज से हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट विन द एब्स्ट्रैक्शन. तो ये सब कुछ हो रहा है, बट मेरा डेटा आपको नहीं दिखेगा या आपका डेटा मुझे नहीं दिखेगा. दिस इज कॉल्ड द सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी. मतलब मेरा डेटा खुद मुझे ही दिखेगा एंड आपका डेटा बस आपको ही दिखेगा. दैट इज योर एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एनकैप्सुलेशन. बट हम दोनों का डेटा, ओके हम दोनों का बिहेवियर, हमारे ट्रांजेक्शन कंपनी के पास ऑलरेडी सेव है, विच इज फ्लिपकार्ट कंपनी के पास ऑलरेडी है, हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एंड ही विल हैव डेटा. बट ये भी हमारा डेटा उनके एडमिन से हाइड किया गया है. दिस इज कॉल्ड इंटरनल हाइडिंग. एब्स्ट्रैक्शन मतलब आउटसाइड हाइडिंग. इट विल जस्ट फोकस ऑन द फंक्शनैलिटी. हमें कुछ करना है क्या, हमें कुछ मीनिंग नहीं है कि ये फ्लिपकार्ट का डेटा कहाँ से हमें दिख रहा है. वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन कि मुझे क्लॉथ सर्च करने हैं, तो मेरी रिक्वायरमेंट के फिल्टर के हिसाब से मुझे मेरे क्लॉथ्स आने चाहिए. अगर मुझे रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो रही है तो आई विल परचेस. परचेस होने के बाद वो मुझे डेबिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, जो भी ऑप्शन है वो बताएगा एंड आई विल प्रोसीड. इनफ दैट पार्ट आई जस्ट रिक्वायर्ड. अगर वो नहीं हो रहा है तो आई विल कॉन्टेक्ट विद द फ्लिपकार्ट एडमिन कि ये मेरा नहीं हो रहा है, आई विल जस्ट कंप्लेन. बट इट डजेंट मैटर कि एडमिन के पास कैसे जा रहा है, मेरी प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, ये कैसे कहाँ से डेटा मुझे दे रहा है. दैट आई डजेंट मैटर. ओके, आई डोंट रिक्वायर दैट इंटरनल फंक्शनैलिटी, एंड वो मुझसे हाइड करने की प्रोसेस को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन. अंडरस्टूड. एंड योर एनकैप्सुलेशन मीन्स व्हाट, हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया, अनदर पर्सन जो भी हो, आपका भी ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो ये सबका जो ट्रांजेक्शन, जो भी डेटा, जो भी परचेसिंग, एड्रेस, ये सब कुछ आपके फ्लिपकार्ट कंपनी के अंदर भी सेव है. एंड योर एडमिन आप इसको देख सकता है, बट एडमिन विल नॉट कम्युनिकेट विद योर बैंक डिटेल्स. आपके जो बैंक डिटेल्स है वो एडमिन से भी हाइड करके रखे जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. अंडरस्टूड द पॉइंट. ये हम लोग ब्रीफ में देखेंगे. आई विल जस्ट इंट्रोडक्शन टू यू. जो नॉन आईटी है तो उनको कंसेप्ट वाइज समझ में आ जाएगा कि उसका मीनिंग क्या होता है एंड व्हाई वी हैव टू लर्न द जावा लैंग्वेज. क्या हम लोग सीख रहे हैं, वी मस्ट हैव टू मोर इंटरएक्टिव, रियल टाइम सिचुएशन वाइज हम लोग एग्जांपल लेंगे, सो दैट यू विल क्रैक योर इंटरव्यू वेरी इजीली एंड आपको कंसेप्ट समझ में भी काफी इजी हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज Java is a platform independent language. Independent means what? Your Java language, Java product can developed on one system and it can run on any platform. अगर मैंने Java development की है, okay, I will develop some application in Windows 8 and that application I will deliver to you. मैंने आपको बेच दिया मेरा एप्लीकेशन, ठीक है, आप यूजर हो एंड उस एप्लीकेशन को आपको यूज करना है Windows 10 एंड 11 पे, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रॉपरली, नो इश्यूज. सेम एप्लीकेशन आप मोबाइल में भी यूज कर पाओगे, नो इश्यूज, हो जाएगा. क्लाउड पे करोगे, हो जाएगा. ओके, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. दिस इज द रियल टाइम सिचुएशन. लेट्स सी द प्रोग्रामेटिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है. Java is the platform independent because
इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, मतलब जावा से पहले सी एंड सी प्लस प्लस आया था, तो ये थोड़ी अलग लैंग्वेजेस है। क्यों अलग है? बिकॉज दे आर कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन। ओके, उनको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, मतलब सी का प्रोग्राम अगर आपने विंडोज 32 पे लिखा है तो बस उसी पे ही आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो किसी अनदर जगह पे जाके उसको यूज नहीं कर पाओगे। गेटिंग दिस पॉइंट? and same for the C++. While your Java is write once and run anywhere language, मतलब Java को आप कहीं पे भी write करो, कहीं पे भी develop करो and उसको कहीं पे भी जाके execute कर सकते हो. This is called write once and run anywhere language. And what is your platform? तो platform में क्या होता है? It is a hardware and the software based configuration, जिसके अंदर प्रोग्राम को execute किया जाता है। ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन है आपका, तो एक हार्डवेयर है, इनसाइड दैट हार्डवेयर समथिंग आपके बटन्स वाइज आपकी कमांड्स ली जाती है, प्रोग्राम सेट किया जाता है एंड एज पर दैट प्रोग्राम क्लॉथ्स एंटर करने के बाद वो अपने आप वॉशिंग क्लॉथ्स को वॉश कर देता है, ड्रेन आउट कर देता है आपका वाटर, वो स्पिन करता है। तो कुछ आप करते हो? नो, दिस इज योर कंप्लीटली रोबोटिक एप्लीकेशन। तो इंटरनली प्रोग्राम विल सेट एंड वो अपना काम करता है। दिस इज योर हार्डवेयर बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, तो ऐसा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म आपको जावा प्रोवाइड करता है एंड योर जावा कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो इसलिए आपका जावा कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, लाइक विंडोज, लिनक्स, सन सोलारिस, मैक ओएस, ऐसे किसी भी ओएस के ऊपर आपका कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज जावा कोड इज कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर। आपका जावा का कोड जो है कंपाइल करता है बाय द कंपाइलर एंड इट्स कंपाइलर नेम इज अ जेवीएम। ओके, जावा के कंपाइलर का नेम क्या है? इट्स अ इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इट्स नेम इज जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि सी एंड सी प्लस प्लस के पास कोई कंपाइलर नहीं है। आपकी ओएस आपके लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल करती है। ओके, तो जावा के पास खुद का कंपाइलर है विच इज जेवीएम एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। तो आपका प्रोग्राम जो है, आपका प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में। आपका बाइट कोड क्यों बनता है? टू रीड योर, मतलब जो आप ओएस यूज करते हो, आपकी ओएस कौन सी है? विंडोज ओएस। तो विंडोज ओएस को एबीसीडी नहीं समझ में आता, अल्फाबेट नहीं समझ में आते, वेयर आपकी जावा लैंग्वेज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ तो प्रोग्राम आप लिखते हो दैट रिटन इन इंग्लिश, बट आपका ओएस वो नहीं समझता। आपका ओएस क्या समझता है? बाइट कोड, 0101 फॉर्मेट। ओके, दैट कॉल्ड बाइट कोड। सम ऑफ फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड दैट हु नोज द व्हाट इज द बाइट कोड। ठीक है, तो इस बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है टू योर लैंग्वेजेस, तो इसको बोला जाता है कंपाइलेशन प्रोसेस। तो आपका जेवीएम कंपाइलर जो है वो आपके कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, कंपाइल करता है इन अ बाइट कोड फॉर द रीडेबल बाय योर मशीन। आपके मशीन ने उसको रीड करना चाहिए और आपका जो भी एग्जीक्यूटेड कोड होता है विच इज बाइट कोड, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। मतलब वो बाइट कोड जो है वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मीन्स आप जब एप्लीकेशन डेवलप करते हो, दैट एप्लीकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है बट वो राइट करते हो इन इंग्लिश, बट उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो बन जाती है मशीन रीडेबल लैंग्वेज। तो किसी भी मशीन पे डालो, वो एज पर द मशीन उसका कोड जनरेट कर लेगी एंड वो एग्जीक्यूट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड दिस इज योर 101% इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या फिर इट इज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मार्क? यस, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and why it is? Okay, because java code is compiled by the compiler and converted into bytecode, and this bytecode is a platform independent code. This is your answer and it can be run on any platform. It means isko bola jata hai write once and run anywhere, or also isko bola jata hai wora, wora. Wora means write once and run anywhere. Getting the point? Yes, yes everyone. Yes, ma'am. Okay, other students, बॉयज समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Yes. Okay. Another one is Java is a secured programming language. Secured means Java जो है पॉपुलर जावा लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी।
जावा सबसे ज्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर जावा के अंदर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो इट प्रोवाइड्स यू 100% गारंटी फॉर द वायरस फ्री एप्लीकेशन। जावा में देखो यहाँ पे दिया है, इट कैन विथ जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री एप्लीकेशन। मतलब अगर इंडस्ट्री में कोई लैंग्वेज आपको गारंटी देती है कि इसके अंदर वायरस नहीं बनेगा तो जावा लैंग्वेज है। इसलिए बैंकिंग सिस्टम में जावा यूज किया जाता है। जहाँ पे आपको एप्लीकेशंस को सिक्योर्ड रखना है वहां पे जावा यूज किया जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई जावा इज बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। व्हाई इट इज प्रोवाइड द सिक्योरिटी? बिकॉज देयर इज नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। पहले ही फर्स्ट पॉइंट में मैंने एक्सप्लिसिट पॉइंटर क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था दैट यहाँ पे कोई भी वायरसेस जनरेट ही नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट वन, जावा प्रोग्राम रन इनसाइड वर्चुअल मशीन। जिस इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जावा कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर विच इज जेवीएम। तो जावा का कोड जो है वो वर्चुअल मशीन के अंदर मतलब जेवीएम के अंदर एग्जीक्यूट होता है सो दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद योर ओएस। अंडरस्टूड द पॉइंट? मतलब अगर ये वायरस भी बनाता है तो ये बनने ही नहीं देगा बिकॉज ये जेवीएम के अंदर रन होता है। एंड अगर वायरस बना भी तो आपका ये आपके ओएस को हार्मफुल नहीं रहेगा क्योंकि ये जेवीएम के अंदर एग्जीक्यूट होता है। एंड योर सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस आर रनिंग ऑन ओएस डायरेक्टली। वो कंपाइल भी ओएस से ही होती है। अगर वायरस है तो ओएस अफेक्ट हो जाएगा। ओएस आपकी ओएस मतलब पूरी रिकवर करनी पड़ती है आपको। वैसे जावा के साथ नहीं होता क्योंकि जावा डायरेक्टली ओएस के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करता। ओके, जावा में पॉइंटर कंसेप्ट नहीं है एंड जावा विल सिक्योर बिकॉज ये रन इनसाइड द वर्चुअल मशीन जेवीएम के अंदर रन होता है। दैट्स व्हाई इट इज सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गेटिंग द पॉइंट? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Next one is Java is a robust programming language. So robust as per the dictionary, English mining मतलब dictionary words है, robust means strong. So Java is a strong programming language. Why it is strong? Because it uses strong memory management. Java का खुद का memory management है। मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, आपके एप्लीकेशन ने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करनी चाहिए, उसके अंदर जो भी आप डेटा ऐड करते हो वो हर एक डेटा को कैटेगराइज किया है एंड वो डेटा किसके अंदर जाएगा ये जावा खुद का मैनेजमेंट करके आपको प्रोवाइड करता है। ओके, दैट वी लर्न इन लेटर। नेक्स्ट वन इज जावा इज अ लैक ऑफ पॉइंटर। ओके, दैट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो जावा में पॉइंटर्स नहीं है, इसकी वजह से सिक्योरिटी इशू कॉल ही नहीं करता। अनदर वन इज जावा प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। तो जावा के अंदर ऑटोमेटिक अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को अनरेफरेंस किया जाता है सो दैट आपको खुद से मेमोरी कंजम्पशन या फिर मेमोरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं है। एंड देयर आर एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड टाइप चेकिंग मैकेनिज्म। जैसे आपके एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है कैरेक्टर बेस्ड डेटा, उसको चाहिए कैरेक्टर बेस्ड डेटा एंड अगर आप उसको पास करें न्यूमेरिक, दैट इज कॉल्ड टाइप चेकिंग। अगर आप न्यूमेरिक दे रहे हो तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा क्या? तो ये सी एंड सी प्लस प्लस कर लेता है। अगर आपको कैरेक्टर चाहिए आप न्यूमेरिक दे रहे हो वो एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ इश्यू नहीं। वो कुछ तो रॉन्ग डेटा आपको डिस्प्ले कर देगा। वेयर योर जावा विल चेक फॉर द टाइप। अगर आपको कैरेक्टर रिक्वायर्ड है एंड यू आर पासिंग द इंटीजर्स तो ही विल नॉट एक्सेप्ट, इट विल थ्रो समथिंग अनवांटेड सिचुएशन, that is called exception and as per that kind of situations को handle करने को बोला जाता है exception handling. This is also point, this is also a separate topic, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो just will learn कि जावा का फीचर है रोबस्ट फीचर। नेक्स्ट है जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। तो जावा पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब जावा का कोड आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, एक जगह पे दूसरे जगह पे ले जा सकते हो। दैट इज कॉल्ड द कैरी द जावा बाइट फ्लोर टू एनी प्लेटफॉर्म। ओके, पोर्टेबल मींस आप इसको कहीं से भी उठा के कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिंपली पोरा, W राइट वंस रन एनीवेयर, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Understood the features of Java? Any feature you don't understand, I will just scroll up again. अगर आपको कोई फीचर समझ में नहीं आया है, understood guys? This is first. Java is a simple programming language.
Another one is Java is object-oriented programming language. This is your 100% interview question. Next one is Java is a platform. Again, 100% interview question. Java is a secured programming language. Again, your 100% interview question. Why it is secured? Java is a robust and Java is a portable language. Okay, at least interviewer will ask for the non-IT background student at least explain 5 features of the Java. ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है explain any 5 feature of Java that you know. आपको कोई भी Java के 5 features को explain करना है, तो इसमें से जो भी आपको आता है उनको बता दो. ठीक है, Java is platform independent, portable है, robust है, simple है, okay, and object oriented है. हो गए 5. Okay, and inside that if he will ask you about each and every one, तो बस आपको थोड़ा डिटेल में जाके बता देना है. अंडरस्टूड गाइज? सबको आया है समझ में आज का Yes, ma'am. लेक्चर? एनीवन एनी हैव डाउट? Yes, ma'am. No. ओके, किसी को लैंग्वेज इशू नहीं है? इफ एनीवन हैव द लैंग्वेज इशू, ओके अमीश, व्हाट यू वांट? पॉइंटर्स कांसेप्ट. इट विल सी इन अ लेटर, मतलब हम लोग डीप में देखने ही वाले हैं पॉइंटर कांसेप्ट क्या होती है. ठीक है, पॉइंटर इज जस्ट सम प्रोग्राम जो आपके मेमोरी को एक्सेस करता है. ठीक है, आपकी जो रैम मेमोरी है इसके अंदर आप जो भी डेटा स्टोर करते हो इसका एड्रेस मेमोरी वो कॉल कर लेता है. ही विल नॉट कॉल योर एक्चुअल वैल्यू, ही विल कॉल द मेमोरी एड्रेस. एंड पॉइंटर जो है वो मेमोरी एड्रेस को कॉल करने के बाद आपका एड्रेस वैल्यू चेंज कर देगा. मतलब आपका जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे आपके पास है you have a is my variable name and its value is 10. okay, इसकी वैल्यू 10 है एंड इसका इंटरनल जो एड्रेस है वो है @abc, इट्स रैंडम एड्रेस. ओके, ये है. ओके, तो जावा लैंग्वेज या फिर हाँ, जावा लैंग्वेज क्या करती है, अगर आप a को कॉल करते हो तो इट विल रिटर्न वैल्यू 10. इट विल नॉट रिटर्न @abc जो भी नंबर है, दैट एड्रेस वैल्यू इट विल नॉट रिटर्न. इट विल जस्ट रिटर्न एक्चुअल वैल्यू. ओके, एंड आप अगर a इक्वल टू 20 सेट कर देते हो तो ये 20 हो जाएगा, बट योर एक्चुअल वैल्यू विल नॉट चेंज. मतलब आपका ये मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होगा. बट वेयर अगर पॉइंटर अगर आपकी लैंग्वेज सपोर्ट करता है तो ही विल कॉल दिस वैल्यू. ओके, ये रिटर्न करेगा एंड इसका जो डेटा है वो आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड अ वायरसेस. आपका वायरस क्या होता है, सी ड्राइव की जो एक्चुअल फंक्शनलिटी है उसको चेंज कर देना, उसको बोला जाता है वायरस. एंड ये वायरस को क्रिएट करने के लिए आपको पॉइंटर्स आना चाहिए. अगर आपको हैकिंग सीखना है, आपको एंटीवायरसेस बनाने हैं, तो यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन इन अ पॉइंटर कंसेप्ट. ये सिर्फ सी एंड C++ में है, जावा में ये कंसेप्ट नहीं है बिकॉज ये वायरसेस बनाती है. अंडरस्टूड द पॉइंट? Yeah. Other, anyone have some doubts? Okay. So कल का जो भी टाइम है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. सर विल मैसेज यू टुमारोज टाइम. ठीक है, एंड फ्रॉम द मंडे आपको सबको 6 PM का टाइम पॉसिबल है ना? अगर इफ एनीवन हैव सम डाउट्स तो आप सर के साथ बात कर लो. ठीक है, एंड प्लीज इंस्टॉल दीज 2 वर्जन्स, 2 सॉफ्टवेयर फॉर द जावा, क्योंकि ये हमें अभी तो फीचर हो गया, मतलब हमारा जो थेरोटिकल इसेंशियल पार्ट था वो कवर हो गया है. हम लोग फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हाउ टू राइट द जावा प्रोग्राम, व्हाट इज द बिहाइंड दैट प्रोग्राम, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग, दैट एवरीथिंग विल लर्न. तो इसके लिए आपको ये दोनों की जरूरत होगी. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे. अगर कोई इशू है, कोई भी डाउट है तो कांटेक्ट विद द HR जिन्होंने आपको कॉल किया था. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर. We'll see you tomorrow. Bye all of you.